Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. You all must have guessed from the very thumbnail of the video that this video is all about EMRS Tier 2 exam. The dates for TGT and PGT EMRS exam have successfully been announced and it is 22nd of March and today is 26th of February. And if we count the days, they are countable. Less than month's time is left for our exam. First of all, the students who have not started their preparation effectively for this exam should start doing it right now without wasting a single moment. From the time dates have been announced, students are baffled, students are confused. But I tell you, there is nothing to worry about. Since you have successfully qualified the Tier 1 exam, you are well equipped, well knowledgeable of the syllabi. Now, what has to be done? Has to be done according to strategy. And what strategy? I will talk about it in today's video. This video is all about how to prepare, what to prepare, how much to prepare, and also about some tips that will come handy as you will sit in this exam. The series has just been started and it will not end. We have already successfully discussed the major writers of African literature. And we will soon be talking about African American writers. Yes, African writers, they are of two types. So this is the clarity you should have as you prepare for this exam. First of all, what has to be done is you have to understand the exam structure. As we all know, our exam is primarily divided into two sections, objective and subjective. This objective section consists of 40 marks, 40 questions. This subjective consists of 60 marks, 15 questions. So going by it, it becomes 15 into 4 is equal to 60. Now what you have to do is, for objective type paper, you have to focus on facts, you have to focus on major authors, their major works, year of publication, major theme, major character. Objective type paper will have much of your grammar section and much of your literature section. But the point to be noticed here is of subjective exam. Students are much more confused about this descriptive objective shift. ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप PYQ प्रैक्टिस कर लेते हैं एम्पल है. आप रिवीजन करें, आप रिकॉल करें और प्रैक्टिस करें. कांस्टेंट प्रैक्टिस में रहे, आप कॉन्स्टेंटली डे इन एंड डे आउट PYQs, NTA UGC NET के PYQs, Shakespeare, Wordsworth and the writers who are prescribed specifically, उनके PYQs अगर आप करते हैं तो that will become very very helpful for you. तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का स्ट्रेस सिर्फ आप PYQ से लीजिए, लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो कि 60 मार्क्स का होने वाला है, उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट नोट मेकिंग करनी है. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, रिलाई ऑन वन बुक. Do not rely on internet sources. Do not rely on ChatGPT for that matter. Yes, you can use ChatGPT to structure, to get the answer, to get the structure of the structure of the age of any writers or structure of the writings of that writer. But अच्छी स्टडी करनी है तो एक बुक पर रिलाई कीजिए, स्मार्ट नोट मेकिंग कीजिए. हम ऑलरेडी टायर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो वी हैव दिस क्लैरिटी इन आवर माइंड एज टू व्हाट who are canonical writers, who demand time, who need attention, writers, the works who need attention, that need attention, and writers that just cannot be devoted this much time, जिनके लिए ब्रशिंग ही काफी होगा. जैसे वर्ड्सवर्थ अच्छे से पढ़ना है, कॉलरिज अच्छे से पढ़ना है, कीट्स को अच्छे से पढ़ना है, बट साउदे पर उतना टाइम डिवोट नहीं करना है जितना टाइम
अदर राइटर्स पर डिवोट करना है। तो हैव दिस क्लैरिटी इन योर माइंड, उसी अकॉर्डिंगली आप स्मार्ट नोट मेकिंग कीजिए। ये आज कह रही हूँ, गोइंग आफ्टर 10th मार्च मैं नोट्स की बात नहीं करूंगी, ना मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स बनाएं, ना सजेस्ट करूंगी कि आप बुक रीडिंग करें। डिवोट दीज 10 days, 10 to 12 days completely on गेटिंग द स्मार्ट मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल। कोई ऑथर रह गया है, कोई एज रह गया है, कोई कॉमनवेल्थ का राइटर रह गया है, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। इस टाइम पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कंप्लीट टाइम ऑफ द डे यू डू नॉट हैव टू डिवोट टू दैट राइटर। मेक श्योर आपकी स्ट्रैटेजी इतनी स्मार्ट होनी चाहिए, प्लानिंग इतनी स्मार्ट हो कि एक दिन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर सॉल्व किया जा रहा है, एक दिन में ग्रामर की प्रैक्टिस जरूर से जरूर चल रही है, और ऑब्जेक्टिव टाइप PYQs की प्रैक्टिस भी चल रही है। लिटरेचर सेक्शन की स्ट्रेस मैं खत्म कर देती हूँ ये चीज बता करके कि हम भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं for TGT, PGT English. We are providing notes for literature section, notes for literature section, both for TGT and PGT. We are providing mock question papers. mock question papers जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे, सब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे, लेकिन लिटरेचर सेक्शन का भाई आप कहोगे मैम आप ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन की बात क्यों नहीं कर रही हैं। हाँ जी, आने वाली वीडियोस में मैं जरूर बात करूंगी, बट राइट नाउ राइटिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फॉर्मेट्स आपके पास होने चाहिए, फॉर्मेट्स आपके हैंडी होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए, एंड यू जस्ट हैव टू चेंज द कंटेंट accordingly. Grammar section is all about rules. Already enough ample material is available everywhere from grammar section, but literature section needs notes. Grammar, writing और reading section के हम notes provide नहीं कर सकते हैं, हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लिटरेचर सेक्शन के। हमारे नोट्स हम बहुत सी वीडियोस में ग्लिम्स प्रोवाइड कर चुके हैं, हमारे नोट्स कॉम्पैक्ट हैं, जस्ट एग्जाम रेडी है, वोकैबुलरी का ध्यान रखकर बनाए गए हैं, कोटेशंस ऐड किए गए हैं, वैलिडेट करने के लिए आंसर को हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में झलक दिखा चुके हैं। हम 19th-20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, 19th-20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, मेजर कॉमनवेल्थ राइटर्स, जितने राइटर्स आपको पता रहने चाहिए उतने राइटर्स के ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ना ज्यादा ना कम। जस्ट एग्जाम रेडी, HPSC PGT के लिए भी हमने एग्जाम रेडी नोट्स प्रोवाइड किए थे। और एक बोनस बात बता दूं, हमारे YouTube चैनल पर HPSC PGT के हेड में जो सब सिलेबस कवर किया गया है वो EMRS के लिए भी उतना ही इक्वल है। आप पढ़ सकते हैं, आप शेक्सपियर पढ़ सकते हैं, आप 19th-20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर को डिटेल में हमारे HPSC PGT हेड के अंडर पढ़ सकते हैं। सिलेबस सेम है, बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है वो तैयारी कराई गई है। तो आप हमसे नोट्स अवेल कर सकते हैं, नोट्स के सैंपल अवेल कर सकते हैं, और वो करने के लिए आपको इस दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। नोट्स को आप हमसे परचेज कर सकते हैं। वोकैबुलरी, एग्जाम रेडी, कंसाइज, कॉम्पैक्ट मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सब नोट्स चाहे वो मॉक क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो हमारे नोट्स हैं, ये सब एक्सक्लूसिवली लिटरेचर सेक्शन के लिए है। सेम नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे, कर रहे हैं LT ग्रेड के लिए, किए थे HPSC PGT के लिए, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, अब हम GDC GIC सबके लिए नोट्स फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल प्राइसेस है, बट आई टेल यू
शॉर्ट टाइम जितना आप लोगों के पास है, ये नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे. यू डू नॉट हैव टू रन हेयर एंड देयर टू कलेक्ट सब्जेक्टिव मटेरियल. मैंने कहा यू डू नॉट हैव टू रन हेयर एंड देयर टू कलेक्ट सब्जेक्टिव मटेरियल. आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव मटेरियल जितना चाहिए, जैसा चाहिए, सब हमारे नोट्स में मिलेगा. दीज नोट्स आर ओरिजिनल, जस्ट एग्जाम रेडी. अब यहाँ पर एक वीडियो में एक और डेडिकेट करूंगी आंसर स्ट्रक्चर को. यस, 10 मार्क्स का आंसर लिखना, 15 मार्क्स का आंसर लिखना और 4 मार्क्स का आंसर लिखना बहुत डिफरेंट बातें होती हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आंसर स्ट्रक्चर के बारे में. फिलहाल आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए. कैनोनिकल राइटर्स को ध्यान दीजिए. आप जानते हैं अगर शेक्सपियर पढ़ना है तो शेक्सपियर की हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की कॉमेडीज, शेक्सपियर की ट्रेजेडी कॉमेडीज, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, HOLM, हेमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ. उन पर आपको इनफ मटेरियल दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन को आंसर कर सके. तो राइट नाउ टाइम क्रंच को देखते हुए आप लोग मेजर राइटर्स पर फोकस करें. बाय 10th of March फोकस करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. इसके बाद कुछ भी नया ना पढ़े, केवल फोकस आपका रिवीजन पर होना चाहिए. एंड इवन बिफोर 10th March आई एम नॉट सेइंग दैट keep on reading and reading and reading, collecting material. No, focus on smart note making, focus on making notes in such a way that you are able to conceptualize it, you are able to recall it, and you have just enough material with you. Practice expected areas. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए. जितना जल्दी हाथ चलेगा उतना जल्दी आपका माइंड चलेगा. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए. उसमें आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड राइटर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए. आप हमसे मॉक क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं जिसमें लिटरेचर सेक्शन के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं. अच्छे 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. इनफ है इन डेज में प्रैक्टिस करने के लिए. अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान दीजिए. स्टोरी लाइक राइटिंग अवॉइड कीजिए. हैंड राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन कीजिए. अपनी राइटिंग को क्रिटिकल कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए. फोकस कीजिए कि 10th March गोइंग फॉरवर्ड मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. give your best in completing your syllabus in just these days. And after that, ये मैं बता रही हूँ, जो प्लानिंग मैं बता रही हूँ, ये प्लानिंग आपके बहुत काम आएगी. rather than flipping your wings in the air just like that, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अरे सब कुछ नहीं करना है. टारगेट मटेरियल होना चाहिए. तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं. एक क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी. और ये सीरीज स्टार्ट की है तो इसे फिनिश भी करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, आंसर स्ट्रक्चर की बात करेंगे. ऑन दैट नोट, please do like, share this channel. Please do like this video if you are liking the way we are talking about EMRS. Yes, the moment dates have been announced, बहुत स्टूडेंट्स हमसे नोट्स अवेल कर चुके हैं, मॉक क्वेश्चन पेपर्स अवेल कर चुके हैं. तो आप वेट किस चीज की कर रहे हैं? आप वेट ना कीजिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए. On that note, I come to the end of this video, but not to the end of this series. Wishing you all the very best as you prepare.